जय सद्गुरुदेव, जय पच्चरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो त्योर्न वशमागच्छितो ह्यस्य परिपंथिनो। साधारण दृष्टि से देखा जाए तो यदि हम इंद्रियों को उनकी रुचि के अनुसार सब विषय देते चलें तो मन को सुख होता है। विषय वासनाएं बुद्धि को पकड़कर नष्ट कर डालती हैं तथा मनुष्य राग द्वेष में फंसकर नाना प्रकार के निषिद्ध कर्मों का आचरण करता है एवं पापाचार में प्रवृत्त होकर अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर डालता है। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर की शरण ग्रहण करके इन राग द्वेषों से सर्वथा अतीत हो जाना चाहिए। वासना और द्वेष जो मानव के सबसे बड़े शत्रु हैं, कब नष्ट किए जा सकते हैं? ये मानसिक प्रवृत्तियां तब हानिकारक साबित होती हैं जब वे सांसारिक विषयों की ओर निर्देशित होती हैं, लेकिन जब ये ईश्वर की ओर निर्देशित होती हैं तो ये मित्र बन जाती हैं। सांसारिक वस्तुओं की वासना को ईश्वर की वासना में परिवर्तित करना होगा। मानव को ईश्वर से यह कहने में संकोच नहीं करना चाहिए, हे ईश्वर, तुम मुझे अपने आप में क्यों नहीं दिखाते? इस प्रकार का क्रोध साहस में बदल जाता है और साधक कभी निराश नहीं होता। वासना और क्रोध को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें सकारात्मक दिशा में परिवर्तित किया जा सकता है और तब ये हानि रहित हो जाते हैं। The goal for the human being is to evolve himself into the divine. Senses are stumbling blocks to it. They are therefore labeled as the enemies of the spiritual aspirant. They require to be transcended. When the life for the individual is converted into the life for the Lord, the senses cease to be enemies. When can desire and hatred, the enemies of man, be destroyed? These propensities of the mind prove themselves enemies when directed to worldly affairs. They become friends when directed Godward. Desire for worldly things must be converted into the desire for God. Let man be annoyed with God and angry with him for not revealing himself to him. Anger changes into courage and the aspirant is never disheartened. Desire and anger cannot be totally destroyed, but they can be transformed. Then they become harmless. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ലളിതമായ ഒരു വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അവയുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നൽകിയാൽ മനസ്സ് സന്തോഷിക്കും. ഇന്ദ്രിയാഭിലാഷങ്ങൾ ബുദ്ധിയെ കീഴടക്കി നശിപ്പിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തിലും വെറുപ്പിലും കുടുങ്ങിയ മനുഷ്യർ പലതരം നിഷിദ്ധ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയും പാപപ്രവർത്തികളിൽ മുഴുകി തൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ജീവിതം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങി ഈ സ്നേഹങ്ങളിൽ നിന്നും വെറുപ്പിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മുക്തനാകണം. മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളായ കാമവും വെറുപ്പും എപ്പോഴാണ് നശിപ്പിക്കപ്പെടുക? ഈ മാനസിക പ്രവണതകൾ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവ ദോഷകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അവ ദൈവത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർ സുഹൃത്തുക്കളാകുന്നു. ലൗകിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തിയെ ദൈവത്തോടുള്ള ആസക്തിയാക്കി മാറ്റണം. ദൈവമേ, നീ എനിക്ക് നിന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി തരാത്തതെന്തേ എന്ന് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാൻ മനുഷ്യൻ മടിക്കരുത്. ഈ തരത്തിലുള്ള ക്രോധം ധൈര്യമായി മാറുന്നു. അന്വേഷകൻ ഒരിക്കലും നിരുത്സാഹപ്പെടില്ല. കാമവും കോപവും പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ അവയെ ഒരു നല്ല ദിശയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയും. തുടർന്ന് അവ നിരുപദ്രവകരമാകും. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ആഗ്രഹം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. साधारण दृष्टिकोनातून पाहिले तर जर आपण इंद्रियांना त्यांच्या आवडीनुसार सर्व गोष्टी पुरवत राहिलो तर मन आनंदी होते. विषय वासना बुद्धीला पकडून नष्ट करतात आणि प्रेम आणि द्वेषात अडकलेला मनुष्य
विविध प्रकारची निषिद्ध कृत्ये करतो आणि पापी कृत्यांमध्ये गुंतून आपले मौल्यवान जीवन उद्ध्वस्त करतो. म्हणून मनुष्याने ईश्वराला शरण जावे आणि या प्रेम आणि द्वेषापासून पूर्णपणे मुक्त व्हावे. माणसाचे सर्वात मोठे शत्रू असलेले वासना आणि द्वेष कधी नष्ट होऊ शकतात का? या मानसिक प्रवृत्ती जेव्हा सांसारिक गोष्टीकडे वळवल्या जातात तेव्हा त्या हानिकारक ठरतात. परंतु जेव्हा हेच प्रवृत्ती देवाकडे निर्देशित केली जातात तेव्हा ते मित्र बनतात. सांसारिक गोष्टीबद्दलच्या वासनेचे रूपांतर देवाच्या वासनेत झाले पाहिजे. माणसाने देवाला म्हणायला अजिबात संकोच करू नये की हे देवा, तू मला माझ्या स्वतःमध्येच का दाखवत नाहीस? या प्रकारचा राग शौर्यात अर्थात लढाऊ वृत्तीत बदलतो आणि साधक कधीही निराश होत नाही. वासना आणि राग पूर्णपणे नष्ट करता येत नाही, परंतु त्यांना सकारात्मक दिशेने निर्देशित केले जाऊ शकते आणि नंतर ते त्यामुळे निरुपद्रवी बनतात, अर्थात आपले मित्र बनतात. जय गुरुदेव, జయ పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం. సాధారణ దృష్టితో చూసినప్పుడు మనం మన ఇంద్రియములకు వాటికి నచ్చిన రీతిలో అన్ని విషయములను ఇస్తూ ఉన్నట్లయితే మనసుకు ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది. కానీ విషయ వాసనలు బుద్ధిని ఆవరించుకొని నాశనం చేస్తాయి. ఈ కారణంగా మనిషి రాగద్వేషాల్లో చిక్కుకొని వివిధ రకాల నిషిద్ధ కర్మలను ఆచరిస్తాడు. పాపకర్మలు చేయడంలో లీనమై తన అమూల్యమైన జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటాడు. అందుచే మానవుడు పరమాత్మను శరణ పొంది నిరంతరము రాగద్వేషములకు అత్యుతుడై ఉండవలసి ఉన్నది. వాసన మరియు ద్వేషమే మానవునికి అతిపెద్ద శత్రువులు. మరి ఇవి ఎప్పుడు నాశనం చేయబడతాయి? ఈ మానసిక ప్రవృత్తులు భౌతిక విషయాలపై దృష్టిని కేంద్రీకరించినప్పుడు మాత్రమే అవి హానికరంగా మారతాయి. కానీ ఇవే కనుక భగవంతుని వైపుగా మరలినప్పుడు ఇవి మనకు మిత్రులుగా మారిపోతాయి. మనం భౌతిక వస్తువులపై గల వాసనను భగవంతునిపై గల వాసనగా మార్చుకోవాలి. మనిషి భగవంతుని ఇలా ప్రార్థించడంలో సంకోచించకూడదు. ఓ భగవంతుడా, నువ్వు నన్ను నీలోనే చూపించడానికి ఎందుకు ఇష్టపడట్లేదు అని. అప్పుడు మన కోపం ధైర్యంగా మారిపోతుంది. అప్పుడు సాధకుడు ఎప్పటికీ నిరాశ చెందడు. వాసన మరియు కోపాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేయడం సాధ్యం కాదు. కానీ వాటిని సానుకూల దిశలోకి మరల్చడం ద్వారా అవి హానికరమైనవి కాకుండా ఉపయోగకరమైనవిగా మారిపోతాయి. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు. నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. जय सद्गुरुदेव, जय प्रसरणम. जो सहज दृष्टिकोण से देखल जाए तो जो हम सब इंद्रिय के रुचि अनुसार सब वस्तु उपलब्ध कराबैत रहब तो मन प्रसन्न भ जाइत अछि. कामुक इच्छा बुद्धि के पकड़ कर नष्ट क दैत अछि आ प्रेम आ घृणा में ओझरायल मनुष्य विभिन्न तरहक निषिद्ध काज करैत अछि आ पाप कर्म में लिप्त भ क अपन अनमोल जीवन के नष्ट क दैत अछि. अतः मनुष्य के भगवान के समर्पण करब आ एहि प्रेम आ घृणा से पूर्ण रूप से मुक्त होबे पड़त. मनुष्यक सबसे पैघ शत्रु काम आ घृणा कोना नष्ट भ सकैत अछि? ई मानसिक प्रवृत्ति तखन हानिकारक सिद्ध होइत अछि जखन ई सांसारिक विषय दिस निर्देशित होइत अछि. मुदा जखन ई सब भगवान दिस निर्देशित होइत अछि तखन दुनू में संधि भ जाइत अछि. सांसारिक वस्तुक वासना के भगवान के वासना में बदलय पड़त. मनुष्य के भगवान से ई कहबा में कोनो संकोच नहीं करबाक चाही जे हे भगवान, अहाँ हमरा अपना के किया नहीं दिखा रहल छी. एहि प्रकारक क्रोध साहस में बदलि जाइत अछि आ साधक कहियो हतोत्साहित नहीं होइत अछि. काम आ क्रोध पूर्णतः नष्ट नहीं भ सकैत अछि, मुदा ओकरा सकारात्मक दिशा में बदलि सकैत अछि आ तखन ओ हानि रहित भ जाइत अछि. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.